کے عظیم شخصیت عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا محمد ثمر عباس اطہاری القادری صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے ایمانی نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، نہایت ہی معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی ہماری اس خوبصورت انٹرنیشنل تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے میزبان مکرم، مجاہد اہل سنت، درویش اہل سنت، محسن اہل سنت، شاہین ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر محمد شمس الزمان صاحب قادری دامہ ظلہ، آپ بڑی محنت اور محبت کے ساتھ اس محفل کا سالانہ اہتمام فرماتے ہیں۔ شہر بھر کے اور علاقہ بھر کے، بلکہ میں کہوں تو ڈویژن کے تمام علماء آپ سے بڑی محبت بھی فرماتے ہیں اور شانہ بشانہ اس محفل میں ساتھ بھی دیتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے۔ جس مشن کو لے کر یہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت کے احباب ان کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یوں تو اسٹیج کی زینت ایک سے ایک بڑھ کر عالم دین تشریف فرما ہے، میں سب کے نام لوں گا تو وقت بہت زیادہ لگے گا۔ میں صرف یہ دعا کرنا چاہوں گا خلاق عالم ان تمام علماء اہل سنت کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک حدیث شریف سے، اور انتہائی مناسب وقت میں اپنا میسج پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے دعائیں لیتا ہوا اجازت چاہوں گا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ آواز کمزور ہے، بالخصوص فرنٹ سیٹوں پر جو تشریف فرما ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافقت اور جہنم سے آزاد ہے۔ اہل اسٹیج جتنے بھی ذویل احتشام علماء تشریف فرما ہیں، میں ان کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور عوام الناس آپ کے لیے بھی ہے، چونکہ کچھ بندے نہیں بولے اس حدیث پاک کا جو وزن ہے وہ میرا خیال ہے محسوس نہیں کر سکے، کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کے ماتھے پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافقت اور جہنم سے آزاد ہے۔ اس حدیث پاک سے جو مجھ طالب علم کو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جو نہ منافق ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے۔ ابھی بھی آواز 2-4 بندوں کی کمزور ہے، باقی سبھی کو اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ایکو کم کریں گے جی، ساؤنڈ والا دائیں بیٹھا ہے بائیں بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے، ایکو کم کر کے ذرا آواز اس کی اور کھول دیں انشاءاللہ۔ آج میں اچھی طرح ڈبہ پاٹ کے متن لے دیا گا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ذرا آپ
आप मोहब्बत से बैठे ताकि मैं बात अर्ज करूं। ये रही खूंदी भी को मुका दे यार, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आवाज़ थोड़ी सी खोल दें। आइए मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त के अंदर मसला ख़त्म नबूवत और उसकी अहमियत अर्ज करना चाहूँगा। यही मेरे ज़िम्मे मौजू लगाया गया है। गिरामी कदर हज़रात, ये मसला ख़त्म नबूवत ये क्या है? ख़त्म नबूवत दरअसल दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक है लफ्ज़ ख़त्म और एक है नबूवत। लफ्ज़ ख़त्म जब हमारी उमूमी ज़ुबान में बोला जाए तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के इख्तिताम की खबर देना। पंजाबी कहते हैं ऐसी गल दसना पता लगे कि फलानी शय मुक गई है, इसके लिए लफ्ज़ ख़त्म का इस्तेमाल किया जाता है। वरना अगर अरबी डिक्शनरी के एतबार से देखा जाए तो ये मोहर के माना में इस्तेमाल होता है, जिसको हम स्टैम्प कहते हैं। मोहर लाई दी है ना, मोहर, ये उस माना में इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये अरबी के अंदर भी ख़त्म बमाना इख्तिताम उस माना में भी इस्तेमाल होता है। ये उसके सियाक़ व सबाक़ से बात समझी जाती है। ये जो लफ्ज़ ख़त्म नबूवत है, इसमें जो लफ्ज़ ख़त्म है ये इन मानों में इस्तेमाल हुआ कि इसके बाद जिस चीज़ का जिक्र है वो चीज़ ख़त्म हो गई। और लफ्ज़ ख़त्म के बाद किसका जिक्र है? नबूवत का। तो आसान मफ़हूम ये है कि नबूवत ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म लफ्ज़ का तो माना है, तो नबूवत किसे कहते हैं? नबूवत अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाने वाला वो ओहदा है जो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बरगुज़ीदा चुने हुए बंदों को इस वास्ते अता करता है कि ये मेरे बंदे मेरा पैगाम मेरे बंदों की तरफ लेके जाएं और उनकी रुश्तो हिदायत के लिए काम करें। फिर वो जो ये पैगाम लेके आता है उसे नबी कहते हैं। अल्लाह ताला उसे बशरे महज नहीं बनाता, बल्कि उसे कमालात व दराजात व फजाइल बहुत ज्यादा अता करता है, यहाँ तक कि उसकी सदाकत और हक्कानियत के लिए अल्लाह ताला उसको मुअज्जज़ा देकर भेजता है कि तू मेरा नबी है, तू मेरा पैगाम लेके जा रहा है। अगर कोई जमाने वाला ना माने तो मैंने तुझे जमाने वालों की तरह नहीं बनाया, बल्कि उनसे तू अफजल है। आवाज कमजोर नहीं करनी, उनसे तू अफजल है हर एतबार से। यहां तक फरमाया अगर कोई बंदा ना माने तो बेशक मुर्दे जिंदा कर देना। हम तो अभी जिंदा बैठे हुए हैं, जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदे फरमाया अगर कोई बंदा ना माने तो बेशक ये भी बता देना कि घर से खा के क्या आए हो और घर में रख के क्या आए हो। अल्लाह ताला उस नबी को ये कमाल अता फरमाता है, वो कमाल उसकी सदाकत और हकानियत के लिए होते हैं। ये नबी आम इंसानों की तरह नहीं होता, बल्कि अपनी सारी उम्मत और सारी कायनात के आम इंसानों से वो नबी अफजल, जुदा और मुमताज और शानों वाला होता है। लेकिन थोड़ी सी बात समझे, ये जो ओहदाए नबूवत है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को इस वास्ते देता है कि वो बंदों की रुश्तो हिदायत और रहनुमाई के लिए मेरा पैगाम लेके जाएं, उसको कहते हैं नबी। ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ? मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस, कंजुल उम्माल अली अल मुत्तकी की हदीस। फरमाया पहले नबी इस कायनात इंसानियत के वो हैं जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, और आखिरी फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरी मैं हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। मसले को समझे, टाइम थोड़ा है, मैं चाहूंगा कि थोड़े वक्त में आपको ज्यादा बातें बताऊं। ये ओहदाए नबूवत ये शुरू हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और इसका इख्तिताम तेरे और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस पर हुआ। अब सुनिए खत्म नबूवत का मतलब क्या है। खत्म नबूवत का मतलब ये है कि जो नबूवत वाला सिलसिला था अल्लाह ने उसको हजरत आदम से शुरू फरमाया और हमारे नबी पर खत्म कर दिया। अभी भी थोड़ी सी बात है, मैं समझाता हूं आपको। उलमा बैठे हैं, जब दरसामी की जाए ना तो कहते हैं जमहूर के नजदीक इसकी तारीफ क्या है। अब जमहूर उलमा के नजदीक खत्म नबूवत किसे कहते हैं? तवज्जो है सब भाइयों की, दाएं बाएं देखने वाले जरा मेरी तरफ देखें, मैं तालिब इल्म सबक सुना रहा हूं। जमहूर फरमाते हैं खत्म नबूवत की तारीफ ये है। अब मैं सब की तरफ तवज्जो चाहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। खत्म नबूवत की तारीफ ये है हमारे नबी के बाद, सुन लो याद रख लो, ये मसला खत्म नबूवत है। हमारे नबी के बाद कयामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं
आ सकता, ये है खत्म। आवाज कमजोर, क्या आवाज कमजोर है थोड़ी सी, सुनियों की आवाज जैसे आती है ना, गोडे छोटे छाड़ के ना जरा, तो एक बार ऊंची सुभान अल्लाह कहो, फिर मैं तो अगली गल अभी तो बाद में बड़े बड़े उलमा आएंगे, मैं तो आपके शहर का ही तालिब इल्म हूं। ये हजरत पीर साहब की मैं समझता हूं कि बड़ा फन है कि मौका दिया कि आप भी सबक सुनाएं। गिरामी कदर हज़रात, खत्म नबूवत का मसला क्या है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, पर कोई नया नबी नहीं, तवज्जो फरमाइए आपने, कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये है मसला खत्म नबूवत की तारीख। लेकिन उलमा बैठे हैं, मैं इनको सबक सुनाने के लिए, आप अवामुन नास के इल्म के लिए एक बात करना चाहूंगा। तवज्जो है मेरे भाइयों की, कोई नहीं है इधर देखो। कोई कह सकता है मौलाना कि आपने ये कहा है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, पर कोई नया नबी नहीं आ सकता। इधर देखिए, ये मसला बड़ा खास है। कोई ये कह सकता है नया नबी नहीं आ सकता, तो जो पहले गुजरे हैं उनमें से कोई आ सकता है? तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं, ये बड़े खास मोड़ पे आपको मसला समझा रहा हूं। भाई कोई नया नबी तो नहीं आ सकता, तो जो पहले गुजरे हैं उनमें से कोई आ सकता है? ये एक सवाल पैदा होता है। अक्सर सर हिला के ये फरमा रहे हैं कि नहीं आ सकता। यही आपको बताने आया हूं कि अल्लाह के हमारे जो नबी हैं उनके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। हाँ, जो पहले गुजरे हैं उनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। जो फरमाइए आपने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, ये याद रख लें। और ये नहीं कहना कि कोई नबी नहीं आ सकता, ये गलत है। ये कहना चाहिए कि नया नबी नहीं आ सकता। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, पर ये याद रखना, आप परेशान हो गए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है तो फिर भी खत्म नबूवत। भाई जब वो आएंगे, हदीस पाक का मफहूम है, मुख्तलिफ हदीसों का मजमुआ है। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आके मेरा कलमा पढ़ेंगे। आपको बात पसंद है तो आपने बोलना है। वो आएंगे, मेरे दीन का काम करेंगे। एक रिवायत 40 साल, एक में है 47 साल वो दुनिया में जलवागर रहेंगे। फरमाया शादी होगी, कमजोर न करें, दाएं बाएं ना देखें, शादियां होंगी। फरमाया बच्चे होंगे, पूरी कायनात में ऐसा दीन फैलाएंगे, एक बंदा काफिर नहीं रहेगा, सभी मुसलमान हो जाएंगे। इस जुमले पर तो हमें बोल लेना चाहिए ना, सुभान अल्लाह, क्या कह रहा है। एक बंदा काफिर नहीं रहेगा, सभी मुसलमान हो जाएंगे जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और अगला जुमला भी सुनना चाहेंगे, और सुन्नियों का तो दिल वो तो फूल की तरह खिल जाएगा। नबी की शान है, हुजूर ने गैब की खबर देते हुए फरमाया दज्जाल को वो कत्ल करेंगे, सूर को वो कत्ल करेंगे, शरीफ को वो तोड़ेंगे, शराब को वो खत्म करेंगे। आखिरी वक्त मदीने में इंतकाल होगा, और फरमाया जहां मेरी कब्र है वहीं पर ईसा की कब्र को बनाया जाए। बोलो तो सही ना, कहने लगा। तवज्जो है मेरे भाइयों की, आप कहेंगे मसला तो खत्म नबूवत का है और बात हजरत ईसा की हो रही है। तवज्जो है भाइयों की, कोई नहीं। अब भाईजान यही एक रास्ता है जिसको हम बंद करना चाहते हैं। चूंकि जब दज्जाल और कज़्ज़ाब आता है तो वो आगे कोई ना कोई रंग और रूप इख्तियार करता है। जब मिर्जा कादियानी आया ना, तो उसने जो नारा लगाया था, उसने पहले कहा था कि मैं एक आम मौलवी हूं, फिर उसने कहा था मैं मुहद्दिस हूं, फिर उसने कहा था मैं मुजद्दिद हूं, फिर उसने कहा मैं मसीह मऊद हूं, फिर उसने कहा मज़ीली नबी, फिर बरोजी नबी, फिर कहता है मैं असली मोहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, और फिर यहां तक दावा किया कि मैं उससे भी अफजल हूं। जबकि कुरान और हदीस का अकीदा ये है कि ऐसा बंदा ये काफिर होता है, मुर्तद होता है, ऐसे बंदे का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यही वजह है हमारे पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 1974 के अंदर यह जरूरत महसूस की कि इन लोगों को काफिर करार दिया जाए, वरना ये लोगों के अकायद खराब कर सकते हैं। लाखों सलाम हो अच्छा इमाम अहमद रजा के एक खास नौकर पर जिसका नाम इमाम नूरानी है, हक व सदाकत की वो निशानी है। आपकी आवाज कमजोर है, आपने और मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जलील कद्र उलमा की मेहनतों ने ये काम कर दिखाया कि कादियानियों को हमारी पार्लियामेंट में काफिर करार दे दिया गया। और ये छोड़ रहे, ये जुमला फकत उलमा के लिए है, अगर आपको समझ आए तो बोल सकते हैं। काफिर फकत वो नहीं होता जिसे पार्लियामेंट कहे, काफिर वो होता है जिसे कुरान कहते हैं। आवाज कमजोर ना करें, ये 4-5 बंदे चुप बैठे हैं, जरा बोल के सुभान अल्लाह प्यार के साथ। काफिर होने के लिए किसी पार्लियामेंट किसी और चीज की जरूरत नहीं है।
तमाशा क्या हुआ था, ये कादियानी जो थे ना, ये बड़े सियाने थे, इन्होंने कहा कि हम तो बात ही ऐसी करेंगे। जब इनको बुलाया गया पार्लियामेंट के अंदर, तवज्जो है प्यारे भाइयों की, कि आप हमसे आके बात, इन्होंने बड़ा तमाशा बनाया ना, चूंकि जर्मनी पैसा देता है, यूरोप सारा, वहां से ये उनका गंद खा के आते हैं। तवज्जो करना, जब बात आई ना इमाम नूरानी पर, तो इमाम नूरानी जाहिर सी बात है जितना भी सियाना हो, जो अहमद रजा का मलाक होता है, नहीं फरमा रहे आला हजरत के नाम पे सार हिलाना ये अच्छी बात नहीं है, जुबानें चाहिए मुझे आला हजरत के नाम पर, क्योंकि इमाम अहमद रजा वो है जिसने मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ 6 किताबें लिखी, और मैं ये कहूंगा इल्मी 6 थप्पड़ मारे आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने। लेकिन ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। उस वक्त इमाम नूरानी ने पता क्या कहा, फरमाया यार मुनाजरा नहीं करना। अब मुनाजरे में क्या होता है, ये लोग ना चस्के के लिए घंटा 2 सुनते हैं, बात करने जा रहे मौलवी लड़ाई छड्डो परे, वो अपनी जगह पे ठीक नहीं, वो अपनी जगह पे, मुनाजरे का ये नुकसान होता है, समझ आ रहे ना नहीं। अब अमूमन इनका नतीजा नहीं निकलता, चंद एक मुनाजरे होते हैं जिनका कोई नतीजा निकला है। अब नूरानी साहब तो सियाने थे भैया, ये तो पार्लियामेंट वाले, तो इनके पास तो 10 मिनट टाइम नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे। आपने क्या किया, उनकी किताब उठाई जिसको वो रूहानी खजान कहते हैं, हम उसको शैतानी खजान कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जो मुझे नहीं मानता ना वो कंजरियों की औलाद है, उसने लिखा हुआ है कादियानी। अब नूरानी साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा मुनादरा से नहीं करना, मुनादरे करनगे बंदे, समझ नहीं फरमाया, मौलवियों को आमने सामने नहीं करना, आप करेंगे। यहया बख्तियार नामी बंदा था, उसे कह दिया कि आ नानी किताब ही ਇਹਦੇ ਐਸ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾदियानी नहीं मानता ना वो कंजरी का पुत्र है, दस तू कंजरी का है। उन्होंने कहा नहीं, गल समझा जे, बात करने का ढंग होना चाहिए। पीर साहब कह रहे बोलो तो सही ना यार, तुझे चौथी बैठे हो यार। उन्होंने कहा नहीं, पीर साहब ने पता की आख्या, शाह अहमद नूरानी साहब ने, उन्हें आख्या फिर मुनाजरा केड़ी गल दा, ओनू आख बई आ जे ने गल लिखी है ना, आ गल या ते तू साडे बारे दस, असीं तुहानू नहीं मानदे, असीं तुहानू नहीं मानदे, तुसीं दसो भी तुहाडे कादियानी दे नजदीक असीं कौन हां, बस ए गल पूछनी। अब वो आ गए जरा मुनाजरे के लिए, हाँ जी कौन मुनाजरा करेगा, यहया बख्तियार खड़ा हो गया, कहना नहीं मैं करांगा। ए किताब कह दी है ओके साडी, ਇਹਦੇ ਐ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ नहीं ये छोड़ेंगे बाद में करेंगे। उन्हें आख्या छोड़े असी कंजरियां दी औलाद भी बनिए ते मुनाजरा भी तुहाडे नाल करिए, सदके जावा मैं तैनूं की कह रहा जनाब। उन्हें आख्या असी कंजर भी बनिए ते मुनाजरा तुहाडे नाल करिए। पहले तो इस बात पे टक ला, वो बड़ा भागे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पर सदके जाओ इमाम नूरानी पर, उसने हर गली बंद कर दी थी कादियानियों की, जहां जाके आगे वो एतराज खड़ा होता था। आखिर पार्लियामेंट में ये साबित हो गया कि ये इतने गंदे हैं, ये तो किसी को अच्छा नहीं समझते। इनकी बाकी इबारत दिखाई, उन्होंने कहा ये लोग काफिर हैं, और पार्लियामेंट में करारदाद पास हो गई, और पाकिस्तान बनने के मकसद में से एक मकसद पूरा कर दिया गया। समझ आइए मैं क्या कह रहा हूं। अब जरा अगली बात भी सुनिएगा गिरामी कदर हज़रात, ये अंदाज है इनके साथ बात करने का। अब यहाँ पर नहीं जी फुला आयत पे बात करें, फुला आयत पे, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊं, जब कोई कादियानी आए ना बात करने के लिए, उसको कुरान नहीं उठाने देना आपने। हाँ, मैं जब दौरे तालिब इल्म में था तब की एक बात उस्तादों ने मुनाजरे में सिखाई, तो वहां पर काम आ गई। डस्कोट में मैं जुमा पढ़ाया करता था, तो वहां पर एक कादियानी ने मत्था लगा लिया, कहता साढ़े गल कर, मैं कह करो, कहता जी हज़रत ईसा के बारे में आपका क्या अकीदा है। मैं कह रौला खत्म नबूवत है, गल ईसा दी, मट्ठा ना बोल, मट्ठा ना बोल, मैं मसला बता रहा हूँ आपको। अच्छा जब ये बात की ना, तो वो कहने लगा नहीं जी असल में ये विच एक गल है। मैं कह की गल है, कहता असल तुहानू इस गल का पता नहीं है, वो जो हज़रत ईसा गए थे। मैं कहा हाँ, अखे उन्होंने आना नहीं, मैं क्या आना, अखे ये जो साडा आया है वो ही है। अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा, जब कोई बंदा ये कहे ना, मैं आपको मशवरा देता हूँ, वो देखो लिखवा लेना भाई ये वो ईसा है जो तुम कहते हो, उन्होंने लिखवा लेना है, नाल कहना भी ये जरा अम्मी का भी नाम लिख दो, अब्बे का भी लिख दो। जब लिख लवे ना तो फिर कागज फाड़ लेना है, उन्होंने आखना हूँ दस भाई ये तुहाडा कौन है, वो कहेगा ईसा। तो उन्होंने भी कुरान ने जिस ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है ना कि वो गए हैं वो आना है, उस ईसा का तो वालिद ही नहीं। अगर आपको समझ आ सकती हो तो आपकी सुभान अल्लाह की समझ मुझे आ जानी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात समझने वाली है। उसे कहो कि बेटा ये तुमने लिखा कि इसका बाप है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो वालिद ही नहीं थे, वो तो कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह अल्लाह के निशान नहीं। पहली बात है झूठे हो गए जनाब। अच्छा जब ये सट
बज जावे ना। हुण अगली गल उन्होंने कहा तू आख्या कि ईसा है, तो बता जिस ईसा ने आना है जो गए थे उसकी माँ का नाम तो मरियम है, एदी माँ का नाम की है। तो जो नहीं फरमा रहे जो बैठे आपके लिए बात कह रहा हूँ। आखिरी वो खुद लिखता है, कहता मेरी भी माँ का नाम चिराग में भी लोग प्यार तो घसीटी कहते सन। मैं क्या पता नहीं कहने कहने घसीटी बट्ठे नाना बोलो यार, सुनियो मैं क्या कह रहा हूँ। जिन्हें जिन्हें घसीटी उन्हें घसीटी तो कहना ही है ना। और बदबख्त हैं ये लोग, खुदा की कसम सुन लें। और मैं आके ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद ने तेरा तो वालिद है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम मरियम है, तेरी माँ भी नहीं लाउदी। अब तेरा जुमला सुनिए, ये उनका रास्ता बंद करना है। अब वो क्या कहते हैं, नहीं 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 ये वही हैं। गल सुनो, उन्होंने मिसाल दियो पंजाबी दी भी यार तुहाडे मिर्जे दी मिसाल ते है जिवें वेलना ते गन्ना हुंदा है। तो जो है वेलना ते वेलना हुंदा ना, वेलना ओदे विच तुन्नो गन्ना ना ते दूए पासे चूरा निकल आउंदा। निकलदा जो गया वो आया जरूर है लेकिन चूरा बन के। मैं कह एक ओ मिसाल बन गई भी जावे कोई ते आवे कोई, जासे जेड़ा ईसा गया है ना। आपकी आवाज कमजोर है, सुन लो आपको ना। जो ईसा गए हैं वो ईसा, ये क्या बात हुई। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है, खुदा अगर अक्ल दे तो ये बात समझ जानी चाहिए। वो ईसा अलैहिस्सलाम वो फरमाते हो बरेउल अकमह वल अबरस व हुयल मौता, वो कहते हैं मैं आंखें देता हूँ, मैं शिफा देता हूँ, मैं बीमारों को सेहत देता हूँ। और भाई वो अंधों को आंखें देते हैं और ये खुद जाना है। आवाज कमजोर है बस, और कोई दुख नहीं है आप पर। लंगर खाता के हलाल करके खाओ, मैं एक बार इधर प्यार दे रहा हूं, समझ आ रही है। तो ये असल हकीकत हाल है। बारल सदके जामा आला हजरत ताइदार गोरडा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब इसका पीछा किया था ना तो हर मैदान में हर जगह पे ललकारा कि आ सैयद का सामना कर। सैयद को होना ही नहीं चाहिए। सैयद को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि बस अपने हाथ चुमवावे लंगर लवे ते अल्लाह ते खैर सल्लाह, ना ना, सैयद को चाहिए सबसे पहले अपने नाना की हिफाजत खुद करे। लेकिन क्या करें, आज उम्मत ही तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोग खामोश बैठे। अल्लाह पाक उनको हिदायत कामिला आजिला अता फरमा दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। गिरामी कदर हज़रात, अब जरा अगली बात भी सुनिएगा। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया मेरे में गल कर। बात चलते 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 यहां तक पहुंची, मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं, यहां तक पहुंची। कह रहा जी एक लंगड़ा लूला ले आओ, मैं भी दुआ करता हूं, तुम भी दुआ करो, जिसकी दुआ पे ठीक हो जाए। तो जो है सबक रास्ती। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया एक गल तेरी मैनू मंजूर कोई नहीं। उन्होंने कहा क्यों? फरमाया लूला लंगड़ा तो ठीक करना, पहले अपनी आह कानी ओनू ठीक कर। देखो ना गल तो पेड़े तो होनी चाहिए ना, मैं तू काना पहले अपने आप को ठीक कर, मैं तू काना तो लोगों को ठीक करना है। नस्ल मुक्की फरमाई ना। कुछ मेरे जंग के दोस्त आए हुए हैं, मैं उनके जौक के लिए ये जुमला बोल रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात, पीर मेहर अली शाह साहब ने जदों चिकिया ना चंगा तो पता क्या कहता है, कहता जी मैं नबी का साया, मैं नबी नहीं नबी का साया। आपने एक बात कही और मुझे थोड़ा सा इजाजत देना, कुछ जुमला बोलूंगा और दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए के तहत। आपने फरमाया क्या कहा? कि मैं साया हूं। आपने कहा किसका? कहता है आखिरी नबी का, मदीने वाले का। आपने फरमाया साला बढ़ के मरनी साया भी योद्धा बने, जेदा साया रब ने बनाया ही नहीं। जिसके हाथ अपने उठा के बोल सकता है सुभान अल्लाह। तो जो है कोई नहीं है जनाब, वो साया भी योद्धा बने, जेदा साया रब ने नहीं बनाया। और खुदा के बंदे शाह तुराबुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने खत्म नबूवत में रिसाला लिखा है, उसके अंदर आप ये रिवायत लाए हैं और सुनेंगे ना तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अब जरा जल्दी जल्दी में आ जाओ, आपको दो चार अहादीस सुना के आगे निकलो। शाह साहब फरमाते हैं पहले जज़ाकल्लाह खैर, पहले जितने नबी आए, तो जो मेरी तरफ रहे, पहले जितने नबी आए उनको जो मोहरे नबूवत दी जाती थी वो उनकी अंगूठी के शक्ल में होती थी, रिंग जिसे कहते हैं। उनके हाथ में अंगूठी होती थी, वो उतर जाती थी और अगला नबी आ जाता था, फिर वो पहनता था, वो उतर जाती थी, वो अगले को मिल जाती थी। अगर तवज्जो रहे तो इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, शाह साहब कहते हैं जब आई ना हमारे नबी की बारी तो खत्म नबूवत हाथ की उंगली में नहीं बल्कि मुस्तफा के दोनों कंधों के दरमियान यहाँ पर अल्लाह ने नस्ब कर लिया। क्यों? फरमाया बता दिया, पहले नबियों के हाथों में इसलिए होती थी कि उनके बाद किसी ने आना होता था, वो उतारने का इशारा था। फरमाया हबीब तेरे बाद तो आएगा ही
कमजोर है यार, हाथ तो चक के बोलो ना मैं क्या कह रहा। तो जो है जनाब, ये अल्लामा पीर मोहम्मद शम्स ज़मान साहब के इलाके के अल्लामा साहब है, हाफिज मोहम्मद लाल इमरान साहब। क्यों जी, उसी मस्जिद के खतीब है ना। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूँ। पीर साहब का बड़ा लंबा चौड़ा हिस्सा है इस खत में। वो कह रहे थे मेरी तारीफ नहीं करनी, लेकिन बाबा हम कैसे ना करें, मुझे बता तो सही ना। अगर आप थोड़ा सा जाके तो अल्लामा ज़ुरकानी की एक बात सुनाऊं आपको, से मेरे मौजू के साथ मिलती तो नहीं है, लेकिन अगर मिलाने वाला हो तो मिल भी जाती है। बात है सिद्दीक़ अकबर की, और सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कौन है शहीद खत्म नबूवत? यार बताओ ना मुझे, कौन है जो पहरा देने वाला है? आप जरा सुनिए, मैं पीर साहब की तवज्जो बिल्कुल और दुआया तरीके से ये बात सुनाना चाहता हूँ। आप जितने हज़रात बैठे हैं, आप सब के लिए ये एक पैगाम है खत्म नबूवत का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब गार के अंदर जाने लगे ना, गार के अंदर कहा या रसूल आप रुकिए, पहले मैं जाता हूँ, बड़ी जल्दी में हूँ, अल्लाह करके जुबानें आपकी साथ दे तो बोलना जरा। आप अंदर गए, अंदर जाके गार को साफ किया, फरमाया आप आइए। सूफिया ने लिखा है, बिलखुसूस इमाम ज़ुरकानी ने फरमाया, लोगों यहाँ से इशारा पता क्या है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में नबी आए तो पहले सिद्दीक़ को लाओ, ताकि तुम्हारे दिल का गंद दूर जाए, फिर नबी भी तुम्हारे दिल में आ जाए। तुम्हें नहीं उठे तो सुभान अल्लाह भी मट्ठी है भैया, ऊंची बोलो। वो पीछे वाले 4-5 और इधर वाले रह गए, बाकी सभी बोल पे एक बारी फिर बोलो, ताकि जनाजा गाह के साथ हम बैठे हैं, ये थोड़े मुर्दे भी पता लगे कि नबी पाक दी खत्म नबूवत दीवाने आ गए। वाह, हुन कोई जरा अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाहु खैर। अब जरा सुनिएगा, कहा जी सिद्दीक़ अकबर को पहले दिल में लाओ। अगर जुमला समझ आया हो, ये इसलिए भी जरूरी है कि महीना जो मेरे सिद्दीक़ का है। अब जरा अगला जुमला, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया आप अंदर आ जाइए। हुआ क्या, कबूतरी ने अंडे दे दिए। तफसीर कबीर में इमाम राज़ी ने इसको लिखा, मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम गज़ाली ने भी लिखा है, इमाम ज़ुरकानी ने लिखा है, बहुत सारे उलमा ने लिखा है। मैं बिलखुसूस ये बात कर रहा हूँ अल्लामा पीर शम्स ज़मान के लिए और इसकी टीम के लिए, जितने साथ देते हैं उन लोगों के लिए, अहले शहर के लिए, अहले ईमान के लिए। सुनिए, उलमा फरमाते हैं वहां पर जिस कबूतरी ने अंडे दिए थे, अल्लाह ताला ने उसकी नस्ल को ऐसी बरकत अता फरमाई, क़यामत तक के लिए या हरम मक्का में रहेंगे या हरम मदीना में रहेंगे। सब उलमा ने लिखा कि वो कबूतर हैं जिन्होंने हिजरत की रात नबी पाक का पहरा दिया था। इमाम ज़ुरकानी कहते हैं जो नबी पर एक लम्हे के लिए पहरा दे दे, ओ अल्लाह उसकी नस्ल खत्म नहीं होने देता। ओ शम्स ज़मान तेरी नस्ल खत्म कैसे होगी, तू तो नबी की खत्म नबूवत है। अगर एक बार सारे खड़े होके बोलो, मैंने सवाल दिया, खड़े होके बोलो, आज नहीं खड़े होके बोलो ना। और भाई सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, बार बार हाथ उठा के जरा। अब जरा तशरीफ रखिए, अब जरा तशरीफ रखिए, वह ऐसे ज़ौक़ के साथ जरा बोलना है। हूँ जी में बैठे हो, ये जरूरी नहीं था खड़ा करना, लेकिन इसलिए कि आपकी तरतीब सेट हो जाए और आपको पता चले कि मसला खत्म नबूवत है। मैं जुमला फिर देना चाहता हूँ, जिसको समझ आए हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह प्यार के साथ। माशाअल्लाह, पीर तरीक़त, आलिम शरीयत, मुजाहिद अहले सुन्नत। जी हज़रत क़िबला कासिम फैज़ान गौस व रज़ा आला हज़रत के दर का सुच्चा फ़कीर, सुन्नियों का पीर, हमारा वीर हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद हामिद सरफराज साहिब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप हज़रत का खिताब या जैसे शेड्यूल होगा थोड़ी देर के बाद हज़रत का खिताब शुरू हो जाएगा। तो जो है मेरे भाइयों की तो ज़रा बोलेंगे सुभान अल्लाह ज़रा प्यार के साथ। भाई यार ये जज्बा आपका कम नहीं होना चाहिए, जो चुप बैठे हैं और अपने हाथों को ज़रा चादरों में छुपाए बैठे, निकालो ना ज़रा हुजूर की खत्म नबूवत के लिए ज़रा। अल्लाह हो आप सब हज़रात का। गिरामी कदर हज़रात, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो कबूतरी जो लम्हा भर के लिए पहरा दे, उसकी नस्ल में तो खुदा बरकत अता कर दे। तो ये शम्स ज़मान हमारा वो भाई है जो 10 सालों
तो सही ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात सिर्फ कानों के चस्के के लिए नहीं थी, ये बात इसलिए भी है जिस तबका है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हम लोग हैं, हम सबका हक बनता है कि हम खत्म नबूवत का काम करें, अपने हिस्से का दिया जलाते रहें, रोशनी तो हो ही जाएगी ना, ये हम सबका हक बनता है। और ये भी सुनिए बिल्कुल इख्तितार के साथ, और मैं गुफ्तगू को इख्तितामी लम्हात की तरफ लेके आ रहा हूँ, किबला पीर साहब और दीगर उलमा तशरीफ ला रहे हैं, वक्त के दामन में गुंजाइश भी कोई नहीं, मैं बात सिर्फ याद कर रहा हूँ, नबी के मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नौकर और खादिम बन जाओ, हुजूर अकरम अलैहि सलाम की खत्म नबूवत के पहरेदार बन जाओ। हमारे इलाका भर के जितने उलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, ये सभी आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के पहरेदार हैं, इन सब के लिए भी दुआ करें। अवामी अहल और बिलखुसूस एक नवी गाल सुन लो, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। ये जो इश्तिहार बांट रहे हैं जरा थोड़ा सा ठहर सकते हैं जी, और लंगर देना लिया थोड़ा सा ठहरना मेरा प्यारा भाई, हूं एक नवी गाल सुन लो, इधर देखना इधर देखना, जुमला आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जो वजूद में ना एक चस वाली लहर दौड़ जाएगी, वजद आ जाएगा। नवी गाल सुन लो, गां दा मूत्र पीण वाला मूदी ओ ज़म-ज़म पीण वाले नूं धमकियां दिंदा भी मैं जान करनी है, मैं क्या वाह ज़ात कोट किरली ते छतीरियां नूं जफ्फे, हाथ तो उठाओ ना यार, क्या कह रहा हूं आपको। और मैं अगला जुमला भी बता दूं, ये खत्म नबूवत के दीवाने हैं, और ये हुजूर की हदीस जानते आका सलाम ने फरमाया हुब्बुल वतन मिनल ईमान, आपने फरमाया अपने वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। हम तो अपने नबी के फरमान पर भी मर मिटने के लिए तैयार हैं। और ये भी सुन लो, ओ मोदी, ओ तेरा नाम तो पहले ही मोदी, काश कि आप जाग रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ओ तेरा नाम तो पहले ही मोदी, तेरी के हर शायद मोदी। और ये सुन ले, और जब भी तू जान की बात करता है ना, ये तेरे फौजी हैं कि जो कहते हैं महीने की छुट्टी दे दो, अम्मा मर गई, दादी मर गई, नानी मर गई, चाची मर गई, साढ़े वैसे मदरसे च काम होता है। अगर आप नहीं समझ रहे मेरी बात को, क्या ख्याल है, वो जब ना पढ़ना पड़े तो कहते हैं नानी मर गई, दादी मर गई और चले जाए, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा, क्योंकि अब सुलझे लोग आ रहे हैं, उस्ताद भी अच्छे हैं, मुदर्रिस भी अच्छे हैं, इदारे भी अच्छे हैं, पर वो क्या करते हैं, चले जाओ छुट्टियों पर, मोदी साहब परेशान हो जाते हैं, मैं तड़ी ला बैठा है, सारे घर जाते पहले, और मैं अगला जुमला ऐसा ये देख लो हाथ बांध के कहने लगा, मैं नहीं तो आखना जी समझ आवेगा, जब वो धमकी लगाता है ना, यकीन करो सानू इन्ना चार चढ़ जाता भी चलो किसी ने फाड़ के कुटांगे तो सुभान अल्लाह, मैं तो की कह दूंगा, ये ऐसा मौका आ जाता है, यकीन ऐसा मौका समझो हर शायद भूल जाती है, असि कहने तू एक बारी जान ला सही, मुस्तफा के दीवाने देखना करते क्या है तेरे साथ, और हम अपनी कौम के सिपा सलार को कहना चाहते हैं, तेरे जैसा फौजी सिपा सलार हमें चाहिए, क्योंकि तू वो है जो 12 रबीउल अव्वल की सुबह इनकी तोपों की सलामी देके मिलाद मनाता है। और यार हाथ ना थले रख, पाक फौज में डाला ला मेरा प्यार मेरा सुभान अल्लाह, समझ आ रही है कोई नहीं, पाकिस्तान का खाते ने ऊंची बोले पाकिस्तान 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 पाक फौज, पता तो लगे सिपा सलार नु दस तू बॉर्डर पे खड़ा है, हम यहाँ मौज मार रहे हैं, और तेरे ते को उठा बेला आ गया, ये न कहना कि ये नहीं आएंगे, और ये भी सुन ले सबसे पहले 11वीं थाना नहीं और के बेटी में हलाल कर देना। बोलो यार बोलो सारे जड़े खाते हो हलाल तो की करो ना, यार मैं क्या कह रहा, बिल्कुल जो मुल्क की सालमियत के लिए इदारे काम करें, आप टेंशन ना लें, कभी भी जरूरत पड़ जाए आप अहले सुन्नत को कह के तो देखें ना, समझ आ रही है, और जब वक्त आएगा तो हम कहने का मौका भी नहीं देंगे, नहीं समझ आई मेरे घर, जब वक्त आएगा तो हम किसी को कहने का मौका नहीं देंगे। और ये भी सुन लें, मुल्क का कोई दुश्मन, किसी भी इदारे का कोई दुश्मन, हमारे मुल्क की मिट्टी का दुश्मन 1 इंच का, हम उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें तो वो चाहिए जो मेरे मुल्क के पत्ते तो पत्ते, फूल तो फूल, कांटों से भी प्यार करे, हमें तो वो बंदे चाहिए। लेकिन बहरहाल ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इस पैगाम में ये बात भी दाखिल करना चाहता हूं कि ये इसको सानिए मदीना कहा जाता है।
سمجھ آ رہی ہے؟ اس ملک کو ثانیہ مدینہ کہا جاتا ہے، مطلب اس کو محبت کے حوالے سے۔ تو جب بھی کفر للکارے تو پھر پیچھے نہیں رہنا، اور انشاءاللہ کوئی پیچھے رہے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ نبی پاک کی ختم نبوت کے دیوانے ہیں۔ بس بات اختتام کی طرف لے کے آؤں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے داروں، آقا علیہ السلام نے فرما دیا انا والساعۃ کہاتین، یوں مثال دے دی، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ آسان کر رہا ہوں، فرمایا بیچ میں کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارا تو یہی نبی ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔ اور میں بالکل یہ بات ختم کرنے لگا، ہمارے اندر نہ ختم نبوت کے معاملہ میں غیرت ہونی چاہیے۔ میں حضرت پیر صاحب کی بلا آپ کی اور بالخصوص جتنے علماء مشائخ بیٹھے ہیں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں، توجہ ہے میرے بنا بھی کوئی نہیں؟ ادھر دیکھیے گا ذرا، یہ سندھ ہے نا، سندھ، اس کا علاقہ ہے تھر پارکر۔ کیا ہے جی؟ تھر پارکر، بہت بڑا علاقہ ہے۔ یہاں پر ایک عاشق رسول رہتا تھا جس کا نام تھا برکت علی۔ کیا نام تھا؟ بٹھے بولو۔ اس کے پاس ایک قادیانی نے آنا جانا شروع کر دیا، وہ جی ایسے ہے، وہ جی ایسے ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ آخر ہمارا قادیان۔ انہوں نے کہا اسی تو سنے یہ مدینے آ ماشاء اللہ، جانا سنے ہم سمجھ آ گئی۔ ہمارے تو وہی ہیں، دیسی بندہ، درویش بندہ، اس کا یقین بہت کامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ امام غزالی فرماتے ہیں علیکم بدین العجائز، تمہارے اوپر بوڑھوں کا دین ہے، بوڑھوں کا۔ یہ جڑے بوڑھے ہوتے ہیں دین بڑا پکا ہوتا ہے، جو مرضی ہو جائے دین بہت پکا ہوتا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، وہ جو